बस हमें रोने की आदत है, छोटा सा दिल टूट जाए आशिकी में, हाय मोटिवेशन मेरे को लगता है हमारे सबके पास है। मैं रोने की बात की यार, वैसे तो बड़ा चाह है अज की यार, ਤੁਸੀਂ यंगस्टर्स होने के नाते इन्होंने चीज़ों में इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मैं कॉलेज में था, मैं भी सेकंड ईयर में था जैसे आप हो, इसी कॉलेज में था। तो जैसे अब आपने कपड़े डाले हुए हैं ना, देखो इसने टॉमी की टी शर्ट डाली है, इसने ब्रांड डाला है, सारे आपने अच्छे कपड़े। इसने बीच में दोस्ती में इसको टाँच मार दी कि हाँ अगले दिन नए शूज़ लेके आएगा। मजाक सोसाइटी च चेंज ਇੱਕੋ ਰਾਤ सोसाइटी च ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੋਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1947 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तो अगे भी कोई चांस नहीं। पर मैं चाहना कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम तब तक ही बड़ी लगती है जब तक हम किसी और की नहीं सुन लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੀਬੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਬੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਬੀਬੀਏ, ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਏ ਕਰ, ਸੋ ਐਮਬੀਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? बिजनेस केड़ा? फैमिली बिजनेस, सारी फैमिली बिजनेस कर। जॉब में लगूंगा फिर, जॉब एक्सपीरियंस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करो आप अपनी इंटरव्यू। क्या पूछना चाहते हो? सर साडा एक क्वेश्चन है कि जिवें तुहाडा एनजीओ है, समय सर थोड़ा बेसिक्स दसो अपने एनजीओ दी कितना वर्किंग होंदी है, किसी ने तुहानू अप्रोच करना है, किसी ने ओके लैनी है तुहाडे? साडी एनजीओ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟ ਮਨੀ ਔਰ ਥਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਇਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਅਨਮੋਲ ਐਨਜੀਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਐਨਜੀਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਐਨਜੀਓ, ਅਨਮੋਲ ਐਨਜੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਡੋਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 1,80,000 ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 1,80,000। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਤੋਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 40 to 50 ਈਅਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1947 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀइंग अ यंगस्टर जिथे बैठे हो। कॉलेज में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मैं कॉलेज में था, मैं भी सेकंड ईयर में था जैसे आप हो, इसी कॉलेज में था। तो जैसे अब आपने कपड़े डाले हुए हैं ना, देखो इसने टॉमी की टी शर्ट डाली है, इसने ब्रांड डाला है, सारे आपने अच्छे कपड़े डाले हैं। अब इसमें ये लड़का बोले ये चारों को कि यार हम ना एक अच्छा काम करते हैं, एक हेल्प करते हैं, तो आप 500 रुपये तू दे, 500 रुपये तू दे, 500 रुपये तू दे, 500 रुपये तू दे। तो आपने इसने बीच में दोस्ती में इसको टाँच मार दी कि हाँ अगले दिन नए शूज़ लेके आएगा। मजाक में बोल देना कि 500 रुपये ले ले, मजाक में। तो मेरे साथ भी ऐसी खप में किसी ने बोला तो मेरे को दिल पे लग गया। तो वो मैंने ऐसी बात बोली तो उसने दोस्त ने बोल दिया, तो मैंने बड़ी दिल पे लग गई बात की, यार वैसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, मैंने इसको बोला चल ठीक है पैसे मत दो, हम एक स्कूल में चलते हैं स्टेशनरी डोनेट करने, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में। तू 500 पेंसिल ले आ, तू 500 कॉपी ले आ, तू 500 बिस्किट ले आ, हम चलते हैं। फिर इसने पूछा तो अब तो नहीं मैं पैसे खाऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर इस तरीके से हमने शुरू किया। तो जब ये पहली वीडियो डाली, आज भी पड़ी है फेसबुक पे, तो उस वीडियो पे कमेंट आया कि ऐसे ऐसे मेरा जो पोता है वो एडमिट है डीएमसी, उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ जाके वीडियो डाली, वीडियो डाल के लोगों को हेल्प के लिए बुलाया, तो लोग वहाँ पर आए आज से 7 साल 8 साल पहले। फिर वहाँ से ये एनजीओ स्टार्ट हो।
बेसिकली इनर मोटिवेशन थी। मोटिवेशन मेरे को लगता है हमारे सबके पास है, हमें रोने की आदत है। हाँ जी। मोटिवेशन क्या होती है? आप अच्छा खा रहे हो, यू आर लिविंग दैट लाइफ जो लोगों का सपना है। अरे सही बात है, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो वो बहुत लोग जीना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहीं पर बैठे पेशेंट्स देख लो, ये आंटी जी बैठे हैं, इनकी 9 साल की छोटी सी बेटी है, एक सोनाक्षी, उनके डायलिसिस होते हैं, दोनों किडनियाँ डैमेज हैं। सो हाउ ब्लेस्ड वी आर। बस हमें रोने की आदत है, छोटा सा दिल टूट जाए आशिकी में, हाय मैं मर गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, हाय मैं मर गया, तो वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं जितनी हम पहाड़ बना लेते हैं। क्योंकि हमें प्रॉब्लम तब तक ही बड़ी लगती है जब तक हम किसी और की नहीं सुन लेते। तो स्टार्ट लिसनिंग टू अदर प्रॉब्लम्स, यू विल फील लाइक योर प्रॉब्लम इज़ वेरी स्मॉल। बेसिकली माइंडसेट होता है। माइंडसेट हो जाता है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ मैं हमेशा समाज 'ਚ ना कोशिश ही करता हूँ ना कि मैं सब ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रहा मैं NGO चला रहा, मैं कोई वो नहीं चला रहा कि मैं इन्हों नीवा दिखा के चलाना आए। मेरे को डॉक्टर्स भी चाहिए, मेरे को स्टूडेंट्स भी चाहिए, मेरे को सारे चाहिए। बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है सोसाइटी में जिसके ऊपर आपका जोर नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर को आप बोलोगे कि पैसे कम कर ले, वो गए यार कहीं और से इलाज करवा ले, मेरे से मत करवा। तो समाज में बड़ा कुछ है, जब आप खुद इस काम में आओगे आपको एक्सपीरियंस होएगा कि जल्दी लोग नहीं साथ देते। जैसे अब इनकी वाइफ, हमें पता है कि 1,80,000 के इंजेक्शन चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो डेथ हो जाएगी। अब मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, मैं अपनी जेब से इनको 2,000 दे दूंगा, आप 500 दे दोगे, आप 500 दे दोगे, पर 1,80,000 पूरा नहीं ना होगा। वो कैसे कब पूरा होगा जब सारे लोग जुड़ेंगे। अब लुधियाना में कोई यूथ, कोई यंगस्टर ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता, पर यहाँ पर नहीं आता। अब आप भी एक बात का बुरा मत मानना, आप भी आए हो जब आपको कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट मिली है, आप वैसे भी आ सकते थे। मेरे को भी नर्सिंग मेरा कहता था आपके पास आ जाए मेरे पक्का हूँ। पर आप कभी नहीं आए ना, आप पहली बार आए हो मेरे ना। को मम्मा भी कहते हैं कि वीडियोस कब से देख रहे हो? मैं कितने साल हो गए ना? मेरे को तो हो गए 3-4 3-4 साल हो गए। अब 3-4 साल में वीडियोस देखने के बाद अगर आप नहीं आए, इतनी मोटिवेशन मेरी देने के बाद, तो ऐसे ही लोग सारे हैं। वो सारे सोचते हैं यार हमारे जाने से कितनों की हेल्प हो जाएगी, हमारे 500 से क्या हो जाएगा। बट जो वो 500 है वो किसी की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। जैसे अब आप हो, अब आप 500 रुपये तो दे ही सकते हो, 100 रुपये दे सकते हो। आईफोन पकड़ा हुआ है 1.5 लाख का, तो जिसने आईफोन रखा हुआ है वो नहीं, मैं मतलब बुरा मत मानो, मैं भी ऐसा ही हूँ, तो मेरे पास भी आईफोन है। हाँ ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कितनी यूथ है लुधियाना में जो कॉलेजेस वाली, कि जिनको 500-500 हज़ार रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो इनिशिएटिव करके कंट्रीब्यूशन करके पता नहीं क्यों राजी। आप क्यों नहीं आए? चलो इतने सालों में आपने वीडियोस देखी, मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी आना क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? अपनी रूटीन में इतने बिजी रहे। कितना बिजी हो, कोविड में 2 साल घर बिठा दिया भगवान ने, सारे जितने बिजी थे बड़े बड़े सब बैठ गए। हम एक्चुअली जाते हैं ब्यास है ना, अच्छा ब्यास जाते हैं, काफ़ी सेवा गुरुद्वारे बट चलो ब्यास वाले बाबा जी भी कहते हैं, मैं उनके सत्संग सुनता हूँ, मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं भी उनके सत्संग पे जाता हूँ। पर वो तो कहते हैं कि अपने आले दुआले देखो कि सेवा जहाँ ज़रूरत है, फिर उनकी मानते क्यों नहीं लोग? बाबा जी कहते हैं ना सत्संग में कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अपने गली गवांड में अगर किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, कहते हैं ना। मैंने सत्संग में बहुत सुना है, फिर उनकी संगत सुनती क्यों नहीं है? गली गवांड तक कितना जिਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ गुरुद्वारे में देना, मंदिर में देना, गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो लिखा है कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक, लिखा है। अगर यहाँ पे देखो सरदार जी बैठे हैं यहाँ पर पीछे, अब इनका पेशेंट, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, या भगवत गीता जी है ना जिनको भी हम मानते हैं, उसमें लिखा है कि परमात्मा संगत में है। परमात्मा कहाँ है? और अगर संगत दुखी है तो परमात्मा खुश होगा? अगर हम उसको मिलने जा रहे हैं या उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी संगत को नहीं दे रहे। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ नहीं मैं मान गया आपकी सारी बातें, बट द थिंग इज़ जैसे अब आप कल को आप बड़े हो गए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स खुद पुराने कपड़े डालते हैं, आपको नहीं लेके देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरे बच्चे ऐश करें। वैसे ही ऊपर वाहिगुरु है, वो कहता है कि अगर मेरे बच्चे को कहीं आज दवाइयों की ज़रूरत है तो दूसरा बच्चा जो एलिजिबल है देने के लिए वो उसको दे, पर वो नहीं देता। आप अपने क्वेश्चन जारी रखो, मैं तो आपकी इंटरव्यू लेने लग गया। सर कि जैसे किसी ने अगर आपको अप्रोच वगैरह करना हो या किसी की हेल्प करनी हो तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके हमें रीच कर सकता है। बाकी हमारी ये लोकेशन है जो ये 8 साल से सेम है, मॉडल टाउन बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के पास। तो कोई भी इंसान महीने में 2 महीने में एक बार यहाँ पे आकर हेल्प कर सकता है। नहीं, एक आपने वो भी चलाई थी ना कि फ्री एम्बुलेंस, जो एक चलाई थी इनोवा में एम्बुलेंस चलाई थी। नहीं फ्री एम्बुलेंस नहीं है हमारी कोई। नहीं, वो क्या सर्विस थी कोई? नहीं वो तो कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए चलाई थी, फ्री नहीं चलाई। क्योंकि फ्री में क्या होता है, फ्री एम्बुलेंस चलाने के लिए जो एम्बुलेंस लेनी पड़ेगी, खर्चा लेना पड़ेगा, फिर हम पैसे तो लेते नहीं, फिर वो कहाँ से लाएंगे? वो अपने हो जाएगा। हाँ वो सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे इतने?
मैं भी आप तरह यंगस्टर था जब एनजीओ चलाई थी, और मैं तब भी कुछ नहीं कमाता था, मैं आज भी कुछ नहीं कमाता। अब ना कमाने वाला बंदा खर्चा कितना कर सकता है, जितनी उसकी जेब अलाउ करती है। जब आपने एनजीओ नहीं खोला था उससे पहले आपने कुछ सोचा होगा कि आपने क्या करना मैंने बिजनेसमैन बनने का सोचा था। हमारा एक्चुअली टी शर्ट का बिज़नेस है, होजरी फैक्ट्री। मैं सोचा था वहीं पर बैठूंगा जाके सुबह 9 से शाम को 9, जो पापा को करते देखता हूँ। बट मेरे को पता नहीं था कि भगवान ने मेरे लिए ये प्लान किया हुआ है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ने के लिए हमारे पास जैसे आप आए हो, वैसे ही हमारे पास यंगस्टर्स आएँ जो जुड़ना चाहते हैं, देखें हमें आके कि हाउ वी वर्क, जो क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में वो पूछें हमसे यहाँ पर आके, तो ऐसे हेल्प हो सकती है। अगर किसी को आउट ऑफ टाइम आपसे हेल्प चाहिए हो तो कॉल कर आउट ऑफ टाइम हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, बट आउट ऑफ द टाइम एमरजेंसी हमारे पास इसलिए सोल्यूशन नहीं है कि सपोज़ कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और वो हमें कॉल कर रहा है, तो एक्सीडेंटल जहाँ हुआ है उस टाइम जो कॉल कर रहा है उसको एमरजेंसी एड दे हॉस्पिटल में जाके, रेदर दैन हमें कॉन्टैक्ट करे। क्योंकि रात को 2 बजे एक्सीडेंट हो गया, मैं 2 बजे कैसे आऊँगा? रात को 11 बजे एक्सीडेंट हो गया, मैं 11 बजे कैसे आऊँगा? जो मेरी आंखों के सामने होगा मैं वो तो उठा सकता हूँ, बट जो मेरे आपके पास हो गया, अब आप क्या कर सकते हो? कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, आप उसको उठा के फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, विद इन 24 आवर्स तो मैं मिल ही जाऊँगा ना, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ 7 o'clock, तो विद इन 24 आवर्स हमसे आके मिले और हम जो उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो सारा फ्री कराएंगे। और वो 24 घंटे में जो पैसे लगे होंगे आपके, जैसे आपने कोई एक्सीडेंटल पेशेंट उठाया, सरकार की तरफ से भी उसको 2000 रुपीज़ रिवॉर्ड है, और हम भी उसके 24 घंटे में जितने पैसे लगे होंगे हॉस्पिटल में वो सारे हम वापस देंगे खुद की पॉकेट में से। हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ हम घर की इंक्वायरी करते हैं। जैसे पेशेंट आके हमें बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं नीडी हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, उसका घर का एड्रेस नोट करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं। मेरे पास सारा इंक्वायरीज़ है उनकी, इंक्वायरी करने के बाद फिर हम उसकी हेल्प करते हैं। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ जितने नीडी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए तो हो ही जाती है, बट फिर भी जैसे अब इनको 1,80,000 की ज़रूरत है, उसके लिए तो चाहिए। जैसे हमारे पास ये देखो सारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, इसमें सारे घर की इंक्वायरीज़ हैं। ये देखो कौन पेशेंट क्या है, सारे पेशेंट्स की घर की इंक्वायरीज़ होती हैं इन्फॉर्मेशन होती है पूरी, क्योंकि जो भी डोनर है वो अगर सेवा करना आया है तो मैं चाहता हूँ कि उसका कोई नुकसान ना हो। ਪੈਸੇ ਜਾਏ तो सर आपको फंड वगैरह रेज करना थोड़ा वो नहीं लगता कि आप एक अपने एनजीओ का फंड बना लो, उसके जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में उसको आप कैश अरेंज करवा दो या कुछ? फंडिंग में क्या है कि जैसे अगर आज हम अरेंज करते हैं ना फंडिंग, तो जैसे वो आप हो है ना, आपने आई वॉच डाली है, मैंने भी कपड़े अच्छे डाले हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है। लोग बोलेंगे कि यार इसके खाते में पैसे आ रहे हैं एनजीओ में से तो खा रहा है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, हाँ, कल को वो बोलेंगे यार पैसे खा गया गाड़ी। तो लगता है ना कि लोगों से क्या लेना, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें क्या लोग भी कम साथ देते हैं। अब आप भी 5 जाने बैठे हो, मैं आपको बोलूँ कि यार ये पेशेंट है इसको पैसे दे दो, आप 5 दे दोगे। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 2 मैं इसको दूंगा, तो शायद 3 ना माने। ट्यूशन लगेगा कि अपने जेब में डाल हाँ एग्जैक्टली। अपने जेब में डाल रहा है सर अगर आप इसमें पैरेलल 2 चीज़ें चला लो कि कैसे? डायरेक्ट उनको हेल्प करो, एक हमारे पास इमरजेंसी फंड हो कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी। उसमें अगर एमरजेंसी फंड्स हम 2, 4, 5 लाख 10 लाख रख भी लेंगे ना, तो लोग इतने नीडी हैं वो हमारे कपड़े पाड़ के फंड्स ले लेंगे कि आपको लोगों ने पैसे दिए हुए हैं वो दो। जैसे अब तो ये पेशेंट बैठा है, अब हमारे पास डोनर नहीं आ रहे, हम इसको बोल देंगे कि भाई डोनर नहीं है, पर अगर इसको पता लग जाए कि हमारे पास एमरजेंसी फंड्स पड़े हैं, तो ये बोलेगा तेरे पास हैं, लोगों के पैसे दे। चाहे उतने हो भी ना। हाँ एग्जैक्टली, पैसे हो ना हो बट लोग बोलेंगे तेरे पास तो करोड़ों रुपए है, लिया हो। मेंटेलिटी है। अभी क्या है, पेशेंट बैठा है, डोनर आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ना सही। मैं तो अब सोशल मीडिया पे लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, अब कोई इंस्पायर हो ना हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा परमात्मा लिख रहा है कि अनमोल ये काम कर रहा है, अनमोल ये कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उसका साथ कौन दे रहा है। अब आप रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको आप फटाफट उठा के हॉस्पिटल ले गए, वो नहीं बचा, डेथ होगी, आपने अपना कर्म तो किया ना, ट्राई तो किया। अब कुछ लोग ट्राई भी नहीं करते। अब एटलीस्ट आई एम पेइंग बैक टू द सोसाइटी, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ ना। अपना कर्म करना ही हमेशा मायने रखता है। रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो लोगों के हाथ में। माइट भी कि खुदा मेरे को आजमा रहा हो, अपने एफर्ट्स तो लिखे जा रहे हैं। सर बस यही हमारे क्वेश्चन थे। बस खत्म हो गए क्वेश्चन। चलो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आराम से दिल से खुशी है। कोई और सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? बस सर आप बताओ कि हम किसी को हमारे कॉलेज में हमने वीडियो चलाने का इंस्पायर करोगे। ये वीडियो मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, आप शेयर करो और वहाँ पर यूथ को बोलो कि यहाँ पर आएँ। कोई एक बच्चा जिम्मेदारी लो कि हर महीने हमने वहाँ पर जाना है और वो डोनेशन इकट्ठी करके लेके आए, और यहाँ पर आके भी हमारे से वीडियो बनवाए कि देखो भैया इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इतने ये पेशेंट को दे दिए, ये उसके घर की इंक्वायरी है, कि जो पैसे लेके आए उस पर भी सवाल ना आए। आपका ये एफर्ट भी लिखा जाएगा कि एक बंदे ने इतनी सिरदर्दी लेके कॉलेज में 5,000 रुपये इकट्ठा किए एक पेशेंट के लिए।
और जिन्होंने पैसे दिए उस सभी को प्रूफ भेज दिया, रिसिप्ट भेज दी कि भाई 5,000 रुपये इकट्ठा हुआ था, ये 5,000 की रिसिप्ट है, ये बच्चा है, ये उसके घर की इंक्वायरी है, ये पैसे हैं, ख़त्म। कि वो कल को आपको ना बोले कि भाई iPhone 15 ले लिया हमारे पैसे तो हमारे पैसे से तूने नया iPhone ले लिया कि नहीं। सही बात है कि सारे प्रूफ दिखा दे, सारे प्रूफ दिखा दो। तेरे पैसे यहाँ पे लगे हैं, satisfied। कभी भी ज़िंदगी में ये मत बोलो कि यार ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी। मैं क्यों बोलूँ कि भाई मेरे पे विश्वास कर, हाँ मैं बोलूँ यार विश्वास रख यार, प्लीज़ विश्वास रख। कल को तू मेरे को देखो रेंज रोवर में, मेरे बाप ने गिफ्ट की हो, तू बोले यार एनजीओ में से रेंज रोवर ले गया, समझ गया। सो आई वांट कि डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर आइस। यहाँ पर बैठे हो, वो पेशेंट बैठा है, इधर आओ अंकल, ये अंकल है, वो दिखाइयो पर्ची। अब जैसे इनकी वाइफ है, ये किसी टाइम पे बड़े अमीर थे तो कोविड में इनका काम बंद हो गया, इन्होंने कड़ी छोले की कड़ी चावल की रेडी लगाई, वो भी बिक गई। अब देखो प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अभी इनकी वाइफ का नाम कंचन शर्मा, कितने के इंजेक्शन है, 1,80,000 के। अब आप ये सेवा डायरेक्टली इनको जहाँ पे इनको इंजेक्शन मिलने वहाँ पर दे सकते हो, या इनके डिपॉजिट करवा सकते हो, इनके घर की इंक्वायरी की ही इज़ 100% नीडी। अब इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन आपको दुनिया की कोई एनजीओ नहीं दे सकती। मैं कोई काम ऐसा नहीं कर रहा जो मैं लुधियाना में एक ही हूँ, वी आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट, क्योंकि द वे वी आर वर्किंग दिस इज़ इम्पॉसिबल। मेहनत इतनी है, एनर्जी इतनी है, कुछ में मिलना नहीं आपको लास्ट में, दुआएं। तो ये दुआएं लेने के लिए कोई काम करता है। हर बंदा कहता है यार पैसे बता कितने बनेंगे। ये स्टूडेंट ने जी कॉलेज पढ़ते हैं, तो मेरी इंटरव्यू लेना सी अज, तो मैं उन्हें समझा रहा सारा कि मैं असी काम करीदा। इनकी वाइफ को डॉक्टर्स ने जवाब दिया हुआ है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगे, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे। तो दिस इज़ वॉट आई ट्राई टू फील एंड ट्राई टू मेक फील टू द पीपल हु डोंट फील दिस थिंग्स। आई ऑलवेज ट्राई इन वीडियोज़ की लोगों को ये चीज़ फील हो कि कितना मुश्किल है जब हम अपने घर में किसी चाहने वाले को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होता देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, बट मेरे को एक बात बताओ, अगर पैसा सब कुछ है तो हॉस्पिटल में फिर लोग दुआ क्यों करते हैं? फिर पैसा फेंक के पेशेंट बचा लेना, क्योंकि कर्म भी काम आते हैं। दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। कईयों के पास दुआ है, दवा नहीं है, कईयों के पास दवा है, दुआ नहीं है। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी के पास शरीर है, सांसें नहीं है, फ़ायदा है। किसी के पास सांसें हैं, शरीर नहीं है, सही है ना। दोनों चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? दिवेश। आपका? साइशा। आपका? रोहन। गुल्लू। गुरनूर। हैविस। बड़े बढ़िया यार, थोड़ा लग गया मिल के। जितना हो सके अच्छा काम करो ज़िंदगी में। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, इट्स लाइक अ ब्लिंक ऑफ आइस। कब ज़िंदगी निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। अच्छा काम जो है वही ज़िंदगी सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। अच्छा काम करो ज़िंदगी में। अपने कॉलेज में किसी फ्रेंड को ज़रूरत है, हेल्प करो। बैक बाइटिंग ना करो, किसी को धोखा ना दो, अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो, बाकी जो खुदा को मंजूर। हाँ, हर महीने, हर साल, हर 2 महीने बाद, चाहे पैसे ना भी कलेक्ट हो, आप वैसे ही हमसे मिलने आ जाओ। हमें खुशी होगी कि यार एज अ यंगस्टर्स हम, देखो कोई सिंगर आता है तो लोग कैसे रश डालते हैं, 20-20 हज़ार का भी पास बिकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, और जस्ट बिकॉज दे आर सिंग गुड, जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी। मेरे में क्या कमी है? मेरे को मिलने की कोई फीस नहीं है। लोग 10 मिनट मिलने के 10,000 लेते हैं, मैं तुम्हें 1 घंटा फ्री में दे दिया, जस्ट बिकॉज आई लव ह्यूमैनिटी। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब यंगस्टर्स आते हैं कि आप आने वाले समाज की एक पीढ़ी हो, तो आपने संभालना है आगे। तो जो मेरे में कीड़ा, मैं चाहता हूँ आप में भी पड़े, क्योंकि हम अमर नहीं है ना, हमने भी चले जाना है। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। आप BBA कर रहे हो तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना थोड़ा टाइम निकाल नहीं, आई ऑलवेज देयर फॉर यू, व्हाट यू आर डूइंग विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आना ही बड़ी अलग बात है। हमने देखा ना कि काफ़ी लाइक आपके पास लोग आए हैं, स्टिल आपने इतना टाइम। अरे नहीं, कोई बात नहीं। यंगस्टर्स हो आप, अगर आप आ सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग एक कदम मेरे साथ चलें, आई एम विद देम 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।